Okay, so let's come back to our extremal principle. So इसका कोई theorem या कोई statement हैवी नहीं है. It is just one kind of a, you can say, a trick कि कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो कुछ प्रूव करने के लिए या कुछ कैलकुलेट करने के लिए. So you see that problem, you try to figure out an element of the problem which are in some sense in order. That's why there is quote said this order is not defined. Order कुछ भी हो सकता है. Minimal element, size of the set और number of elements. तो इन सारी चीजों में एक थोड़ा एक ऑर्डर होता है कि साइज बढ़ेगा या छोटा होगा. यू कैन कंपेयर द साइज ऑफ अ सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स. तो यू ट्राई टू सी कि क्या एलिमेंट है जिसमें कुछ ऑर्डर का सेंस मिल रहा है मुझे. देन फोकस ऑन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट of that set or that element, and then use that quantity to prove or to calculate or do whatever you want to do with that problem. So ये प्रिंसिपल पढ़ते ही हमें नहीं समझ में आएगा कि क्या होनी चाहिए वो लार्जेस्ट चीज स्मॉलेस्ट चीज. जब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो और एविडेंट होता जाएगा कि किस तरह की प्रॉब्लम में कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट काम आता है. तो इसके लिए प्योरली इफ यू डू मोर क्वेश्चंस एंड यू थिंक अबाउट थिंग्स then you will understand which element to consider. And there is a very beautiful line said by Professor Sandeep. Abhishek told us about him, and I think he was giving a lecture, and he said this line for this extremal principle, that one tortures a mathematical object to its limit, then it yields. So this is like one umbrella you can put it on the extremal principle. How to go to that, how to get to that extremal element. So okay, हमने एक्शन में देख लिया प्रिंसिपल एक्सटर्नल प्रिंसिपल, हमने थ्योरी भी समझ ली. नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन कैन वी यूज द एक्सटर्नल प्रिंसिपल. यहाँ पे एक एनिमेशन होना चाहिए था, एवरीवेयर नहीं पहले आना चाहिए था, मैं पूछने वाली थी. उसके लिए सॉरी. सो द आंसर इज एवरीवेयर. एंड अगेन जो मैंने कॉन्ट्रडिक्शन के लिए बोला था मैं एक्सट्रीमल प्रिंसिपल के लिए भी बोलूंगी कि दिस विल बी योर दिस शुड बी योर सेकंड नेचर. यू शुड गो टूवर्ड्स दैट कि कोई भी प्रॉब्लम देखा सबसे पहले सोचा कॉन्ट्रडिक्शन से होगा क्या, देन और साथ ही साथ सोच रहे हैं इसमें कोई एक्सट्रीमल एलिमेंट है क्या, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको मैं यूज कर पाऊं जैसे हमने पिछले प्रूव में यूज किया. So to make this more clear, let's do one question at least, and then we will end the session. So this is a very beautiful problem. Maybe you have seen it, I'm not sure. So you can see on the right side of the slide, consider this as a chessboard which has infinite side lengths. Upar bhi, niche and side bhi. And just imagine, abhi yahan pe to likha nahi hai, I can fill in, but there's no point to fill in. But just imagine that in this infinite chessboard, there are some positive integers written on each squares. एक लिख दीजिए पूनम, एक कोई सा स्क्वायर फिल कर दीजिए. ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, ऐसे ही भरे हुए हैं सारे स्क्वायर्स भरे हुए हैं. Now the next thing is, let the value in each square be the average of its 4 neighbors. So there are इस पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने नेबर्स हैं. ये है एक नेबर, ये है एक नेबर, ये है एक नेबर, ये है एक नेबर. सो नेबर की डेफिनेशन क्या है? Whenever a box shares a edge or shares a wall with other box, that box is going to be your neighbor. So that's why this particular box, which has 2, it has 4 neighbors: north, south, east, west. Sorry, west, east. So question क्या है? Okay, हाँ अभिषेक. वो लेट द वैल्यू के बजाय अज्यूम दैट द वैल्यू लिख दीजिए. वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है. लेट द वैल्यू थोड़ा सा अजीब लग रहा है. अज्यूम दैट द वैल्यू कर दीजिए उसको. Okay. Assume that each square has a value, a positive integer. Now my question is, prove that the values in all the squares are equal.
Let's take some time, like 1 to 2 minutes. Digest this question. Think whatever we have done. And see what we can do. क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन में कोई डाउट है कि कुछ केस समझ नहीं आ रहे हैं, मैं भर रहा हूँ लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, पूछ सकते हैं आप। तो चलो आपका मैं एक छोटा सा एग्जांपल कर ही देती हूँ, जिससे कि आप, ये बोल रहा है कि जो स्क्वायर के नेबर्स का एवरेज लो वो हम बीच में डालेंगे, तो इट इज सर्टेन दैट कि यहाँ पे भी 2 ही होगा, यहाँ पे भी 2 ही होगा, यहाँ पे भी 2 ही होगा, यहाँ पे भी 2 ही। हम क्या प्रूव करना मैं नहीं चाहते हैं? समझ पाया, आप ये कैसे बता रहे हो कि ये सब जगह 2 ही होगा? ओ सॉरी, मतलब अगर यहाँ पे 2 होगा तो बीच में तो 2 ही आएगा। दैट इज ये मैं, हाँ उल्टा मैं बोल रही थी, लेकिन ये मैं अभी सही बोल रही हूँ कि अगर आपके चारों नेबर्स पे 2 होंगे तो आपके पास 2 ही आएगा, क्योंकि आप एवरेज ले रहे हैं। हमें ये शो करना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे 5 आ जाए, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं। आई थिंक आप 5 के अराउंड एक एग्जांपल लेके दिखा सकते हैं जहाँ पे इक्वल नहीं होंगे नंबर्स लेकिन फिर भी एवरेज 5 आ रहा है, जैसे कि 6 6 और 4 4। एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन यही है। हमें तो क्वेश्चन तो बोल रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब ये कि एवरेजिंग प्रॉपर्टी हर एक स्क्वायर के लिए होनी है, और समहाउ क्वेश्चन हमें बता रहा है, प्रूव करने को कह रहा है कि अगर ये हर एक स्क्वायर के लिए एवरेजिंग प्रॉपर्टी होनी है तो सारे ही नंबर्स को बराबर होना पड़ेगा। और ये क्लियर है, अगर सारे नंबर्स बराबर हैं तो एवरेजिंग प्रॉपर्टी हो रही है, दैट्स अ ट्रिवियल जी, कॉन्सेप्ट। बट ये क्वेश्चन उसका उल्टा प्रूव करने को कह रहा है कि अगर एवरेजिंग प्रॉपर्टी हो रही है तो सारे नंबर्स बराबर हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग। तो अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। they are thinking about it. Let's give them some time. And if you have any strategy or anything how to prove it, you can unmute yourself and tell me. चलो थोड़ा हेल्प करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऑफ कोर्स हम एक्सट्रीमैलिटी पढ़ रहे हैं, तो हो, हमने कॉन्ट्रडिक्शन भी पढ़ा है, तो हो सकता है कॉन्ट्रडिक्शन लगे, हो सकता है एक्सट्रीमैलिटी लगे। क्योंकि हम एक्सट्रीमैलिटी के बाद पढ़ रहे हैं तो ज्यादा चांसेस है कि एक्सट्रीमैलिटी का ही क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, ये एक्सट्रीमल ऑब्जेक्ट, क्या पॉसिबिलिटी है उसकी? आई थिंक इस क्वेश्चन में भी हमारा जो हमने सबसे पहला मेटा प्रिंसिपल सीखा था कि write down or visualize whatever information is given in front of you, just write it down, it might help you. So यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको अगर आप क्लियरली सामने लिखो तो शायद आपको कुछ क्लू मिलेगा। ओके, सो 1 minute is done. ईशान और मुदाबिर, do you want to say something? Any idea? Not yet. Okay, no issues. Think a little bit more. ईशान? Yes, ma'am. Me too. ओके, कोई नहीं, चलो मैं एक हिंट देती हूँ आपको, ठीक है? मैं बोल रही हूँ कि इस पूरे चेस बोर्ड में जो भी नंबर है वो कौन से सेट से आ रहे हैं? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जरा देखो, विजुअलाइज करो इस सेट को जस्ट सोचो, कुछ दिख रहा है क्या इस सेट में? कुछ एलिमेंट दिख रहा है क्या एक्सट्रीमैलिटी का? Either 1 या फिर infinity extreme. हाँ मतलब, ओके, यू आर सेइंग दैट it has these limits. मैं पॉजिटिव इंटीजर्स को बोल सकती हूँ कि ये हमेशा 1 से बड़े, से अभी से रिप्रेजेंट करती हूँ, एंड इंफिनिटी से छोटे होंगे। नाउ डज इट टेल यू समथिंग हमारा क्या होगा एक्सट्रीमल एलिमेंट? कोई बात नहीं, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आई थिंक ये इन इटसेल्फ दिस इज अ क्वेश्चन जो कि आप लोग अपने होमवर्क में करोगे। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, you have to prove that it is bounded below, like it is bounded by below.
तो क्लियर दिखता ही है कि 1 इसका है हमारा लोअर बाउंड। ओके, नो इश्यूज। तो हमारा एक्सट्रीमल एलिमेंट यही है, हमारे सारे स्क्वायर्स में नंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर से आ रहे हैं, हमें पता है कि वो सेट लोअर बाउंडेड है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि इस सारे स्क्वायर में जितने भी नंबर्स भरे हैं वो एटलीस्ट m एक एलिमेंट हमें मिल जाएगा जो कि वो मिनिमल होगा उन सारे नंबर्स का। आई थिंक मैंने गलत तरीके से बोला, फिर से मैं बोलती हूँ कि क्योंकि सारे नंबर्स जो स्क्वायर में भरे हुए हैं वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स से आ रहे हैं जो कि लोअर बाउंडेड है, तो हम एक ऐसा नंबर इस इन्फिनिट चेस बोर्ड में ढूंढ सकते हैं जो कि सबसे लीस्ट हो। इज इट क्लियर? इज दिस स्टेटमेंट क्लियर? Yes, ma'am. Cool. Yes, ma'am. So I think I have already made this. So ये है वो नंबर m. m stand for minimal here. Now मैं इस m से शुरू करती हूँ। ये हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है, तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था एक्सट्रीमल प्रिंसिपल, अगर हम ढूंढ ले वो एक्सट्रीमल ऑब्जेक्ट तो वो हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। अगर हमें प्रूव करना है या कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करना है, जो भी कैलकुलेट करना है, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि सारे नंबर सेम हैं। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, मिनिमल एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। अब मिनिमल एलिमेंट के 4 नेबर होंगे क्योंकि हर स्क्वायर के 4 नेबर हैं, तो मैंने बस नाम दे दिए हैं इसके नेबर्स को, n फॉर नॉर्थ, e फॉर ईस्ट, वेस्ट फॉर w एंड साउथ फॉर s. Now since m is an minimal element, this will be true, this assumption is true कि m will be n, e, s, w, they will be at least m, क्योंकि by the definition m is the minimal and m is the minimal point. तो बाकी Yes, ma'am. सारे नंबर्स इससे बड़े ही होंगे। नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो कि मैंने बोला, ओह आंसर पूरा ही खुल गया, सॉरी फॉर दैट। सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज दिस कि m इज द एवरेज ऑफ ऑल दीज 4 नंबर्स। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। नाउ हमारा पास एम क्या है? हम केवल अगर ये दिखा दें कि n m के बराबर है, देन वी आर डन, क्योंकि जो भी हम स्टेप लेंगे वो सेम होगा e के लिए भी, w के लिए भी, s के लिए भी। तो अगर हम ये दिखा दें कि n इक्वल्स टू m है, देन वी आर डन। सो वी हैव शोन दैट सिंस w, e, s ये तीनों ही एलिमेंट एटलीस्ट m तो हैं, तो w/4 भी एटलीस्ट m/4 होगा, e/4 भी एटलीस्ट m/4 होगा और s/4 भी एटलीस्ट m/4 होगा। I have just used this and there is a typo in this slide. There is an extra m/4 which should not be there. वो आपका लेजर पॉइंटर है शायद। हाँ, वो बहुत ही इरिटेट कर रहा है मुझे। ठीक है, आप ऐसे ही बता सकते हो, इक्वेशंस लिखने की हाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। आई थिंक इट्स क्लियर कि वहां पे क्या लिखा है। यहाँ पे एक्चुअली 3m/4। हो हाँ गया। हट गया, ओके। सो दीज 3 टर्म्स 3m/4, 3m/4 को आप लेफ्ट साइड पे भेज दीजिए तो m/4। सो यहाँ से आपको आ जाता है कि m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। एंड हम लेके ही चले थे कि m एटलीस्ट n, m तो होगा ही। अब हमने बता दिया कि एट मैक्स m हो सकता है। सो m is equals to n. So now tell me what about EWS? अच्छा, एक्चुअली मैंने ये पहले ही बता दिया। EWS they will also follow the same argument. Just replace Yes. others by m/4. In fact, you don't have to write it. It's evident that they are going to follow the same rule, and we will ये have क्लियर हो गया है, पहले मतलब श्योर हो जाना चाहिए कि इज दिस क्लियर व्हाई m इक्वल्स n। Yes, sir. It's clear. चलो सही है। ईशान आपको क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो ठीक है। क्लियर कि W, E और S भी इक्वल होंगे n के, m के। That we can say symmetrically they are also. It is true for them also. या सो इसमें प्रूफ में हमने कुछ
एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी एन की यूज नहीं की है कि इसका डायरेक्शन क्या था, कि कौन क्या नंबर था, हमने कुछ ऐसा यूज ही नहीं किया है। तो बहुत ही ऑफ कोर्स ये सिमेट्री हम पढ़ेंगे आगे जाके, ये सिमेट्री यूज कर रहे हैं हम एक तरह की, क्योंकि कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है एन डब्ल्यू ई एस में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो we will use the same argument for others as well. And is it clear that from this we can say that every number is equal? Is it clear? Yes, ma'am. What about Ishan? Yes, ma'am. Great. कैन यू आर्ग्यू क्यों ये ऐसा है? सर ये एक जनरल टर्म के लिए लिए थे ना, फिर अगर अपन कोई रैंडमली अलग ब्लॉक ऑफ स्क्वायर भी पिक कर लेंगे तो उसके लिए भी अपन यही सेम आर्ग्यूमेंट फॉलो करेंगे, अपने को यही रिजल्ट ओवर एंड ओवर मिलते जाएगा। Just again be careful. क्या आप रैंडमली जाएंगे किसी स्क्वायर पे, यहाँ पे कहीं? यस मैम, जा सकते हैं ना। तो फिर ये जो हमने प्रूफ यहाँ यूज किया, आप वहां कैसे लगाएंगे? आपको कैसे पता कि वहां पे बीच में मिनिमल एलिमेंट बैठा है? थैंक यू अभिषेक, मुझे आपने पूछा ये क्वेश्चन। अच्छा, Yeah, that's a problem I didn't think about. कोई बात नहीं, वी आर हेयर टू लर्न। ईशान आपको क्या लगता है? Sorry, ma'am. Can you repeat the question? क्वेश्चन ये है कि मुदाबिर ने बोला कि ये प्रूफ सफिशिएंट है ये बोलने के लिए कि सारे स्क्वायर में सेम नंबर है, और उसने ये बोला कि जो आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे लगाया, इस पर्टिकुलर एरिया में लगाया, वो हम कोई भी एक रैंडम एरिया पकड़ लें और सेम आर्ग्यूमेंट लगा दें तो हम प्रूव कर देंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि उस रैंडम एरिया में ये जो हमने मिनिमलिटी का प्रिंसिपल यूज किया, हम वहां कैसे यूज करेंगे? सो इट्स वेरी लाइक, ऑफ कोर्स दिख नहीं रहा है लेकिन है आंसर सामने ही लिखा। अब हमने ये प्रूव कर दिया। हाँ, क्या? We didn't choose him according to some particular region on the chessboard. Like it is already a random region on the chessboard. ओके, यू आर सेइंग दैट कि मैं समझ नहीं पाई कि आपने क्या बोला। आपने बोला कि ये एक रीजन मैं चूज करूंगा और उसमें मैं पिक करूंगा कोई मिनिमल एलिमेंट, इस पर्टिकुलर रीजन में केवल जो मिनिमल होगा। आप ये बोल रहे No, हो? no, अच्छा, तो I'm आप क्या saying बोल रहे that. हो? I'm saying that when the region where we have already chosen him, in that region was already random, wasn't it? So नो, दिस वाज नॉट रैंडम। इज इट क्लियर? दिस वाज नॉट रैंडम, क्योंकि हमने क्या Yes, ma'am, प्रॉपर्टी it was not random. क्योंकि हमने दिस एक इज नॉट मिनिमल रैंडम। पॉइंट चूज किया। हाँ, क्योंकि yes, स्क्वायर में भरे हुए थे नंबर, उसमें से सबसे छोटा नंबर मैंने yes, पिक किया, yes, वो yes, तो yes, रैंडम नहीं हो सकता, वो तो कोई एक पर्टिकुलर yes. हाँ पोजीशन पे होगा। कोई Hmm. बात नहीं, वी हैव शोन दिस इज एम, दिस इज एम, दिस इज एम, Hmm. दिस इज एम। अगर ये एम हो गया है, एम मिनिमल है, तो इसके ये जो चार नेबर हैं, ये तो ऑलरेडी एम है ही, ये एम है। इसके जो इस डब्लू की जगह अभी जो एम बैठा हुआ है, इसके जो चार नेबर हैं, ये ये भी एम हो गए बाय द सेम आर्ग्यूमेंट। इस एम एस की जगह जो एम बैठा है, इसके जो चार नेबर हैं, ये भी एम हो गया, और यहाँ पे इसके जो चार नेबर हैं वो भी एम हो गए। तो नाउ यू कैन सी ये एक जैसे रे की तरह धीरे 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 बढ़ता जा रहा है चारों तरफ। सो ऐसे हम जा रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि यहाँ पे भी एन होगा, यहाँ पे भी एम होगा, यहाँ पे भी एम होगा, यहाँ पे भी एम। तो हम रैंडमली नहीं जाएंगे, हम ऐसे बढ़ेंगे। हमने देखा एम बहुत इंपॉर्टेंट है, एम हमें रखना है पिक्चर में क्योंकि हमको मिनिमलिटी चाहिए। हम एम से स्टार्ट अगर कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है, तो बस उसको पकड़ लो कि कहाँ कहाँ एम है, उसके ऊपर जाते जाएं और ऐसे रे की तरह बढ़ते जाएं चारों दिशाओं में। सो दैट इज द थिंग, रैंडमली नहीं जाना है। ठीक है, आई थिंक Yes, लेट्स एंड द Yes, सेशन ma'am. विद दिस।
I had one more question, but I think we can put this in the chat in the homework. So how are we feeling after learning what is extremality, what is contradiction? Do you have anything to add? समझ में फीलिंग आया? Yes. समझ में आया। Okay, समझ में आया। कुछ नया सीखा आज? Yes, ma'am. पुराने प्रिंसिपल्स थे लेकिन उनको एक अलग तरीके से देखने का आइडिया मिला। अच्छा, great. Yes. So, Like of want course, to skip things without knowing them, without knowing what actually we are doing. great. This is a great insight actually. So, of course, you just don't have to say the rosy picture. You can, in fact, give us your pointers for any kind of improvement as well. We will circulate a feedback form as well after this class. We will circulate a homework sheet as well. So, purpose of the homework sheet is not कि तुम लोग सारा solution निकालो और वो हमें submit कर दो और आपका job is done. This is not the purpose of this homework sheet. The purpose is do all those questions, pay your due diligence to each question, learn from each questions. कोई भी नया ट्रिक समझा कुछ भी है वो उसको समझो, मतलब इट्स कहते हैं ना पूरा निचोड़ के उस पूरे क्वेश्चन को निचोड़ उसका समझो कि क्या है और हम आगे क्या ले जा सकते हैं. So with this, I think we are done with today's class. So we have done a few things. I did not mention these things, but sorry for that. We did these things, but I did not mention these terms. We will mention these terms in the next class. We have learned what is contradiction, inaction, what is analogy. We did some characteristics of our prime numbers. We did extremality in action. We saw that how to use extremality, and then we did at least one question, not actually one, two questions where we were able to recognize extremal objects in a problem. So with this, in fact, I had a question for you after the class, but I think I will not discuss that because it will be too much. I will keep this in the homework. If you have any question, you can ask. If not, then you guys are free to leave. And I'm sorry, I think I should have given you guys also a break in between, but I totally forgot about that. We will do that from the next session. If you have any question, you can ask, stay, and if you don't, then you can go ahead with your day and have a great Sunday. Ma'am, I have some general doubts. Go ahead. It's not exactly related to the class. ये मैम आज का मेरे सेशन मतलब बहुत इंटरप्ट हुआ हो, मैं अच्छे से नहीं कर पाया, उसकी रिकॉर्डिंग कब तक अवेलेबल होंगी? ओके, सो रिकॉर्डिंग का क्या है अभिषेक और सिद्धार्थ? तुम अभी म्यूट हो अभिषेक. हाँ, तो आप मुझे भेजिएगा तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसको अपलोड करने के. 2 दिन में हो जाना चाहिए मैक्सिमम, पर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में अपलोड करेंगे. एक साथ पूरा बड़ा वीडियो नहीं डालेंगे, एक एक पजल को काट काट के डाल देंगे. तो So मतलब Munawir, I think this session will be on YouTube, our channel. So it will be easily available for No, you. but not the whole thing. We will put some highlights, but we can probably give the unedited video to you soon. Just don't circulate. Yes, sir. Unedited video, हाँ better रहेगा. Of course, sir, we won't circulate it. Don't worry. Okay, all right. और सर दूसरा क्वेश्चन कि अपना मतलब रिस्पॉन्स इतना ज्यादा नहीं आ रहा है सर, लेकिन अपन फिर कंटिन्यू कर तो पाएंगे ना क्लासेस के? ऐसा नहीं होना कि अपने को बीच में ही रुक जाना पड़े. तो ये मॉड्यूल तो हम पूरा कंप्लीट करेंगे, हाउ टू सॉल्व इट, जो कि लगभग 10 सेशन जितना तो होगा ही. और उसके बाद हम फिर से फ्लोट करेंगे ओलंपियाड के लिए, क्योंकि उसके बाद ओलंपियाड मैथमेटिक्स का स्टार्ट हो जाएगा. यानी Okay. ये मंथ तो पूरा होने ही वाला है. इसके बाद भी मोस्ट लाइकली एक और मंथ या एटलीस्ट 2-3 वीक और होगा उसके ऊपर. और उसके बाद हम ओलंपियाड मैथमेटिक्स के लिए अलग से फ्लोट करेंगे कि अब ओलंपियाड मैथ स्टार्ट हो रहा है, तो उसका मॉड्यूल सेपरेट ही होगा इससे. ओके सर. और ये आपने कहा था जब फॉर्म सर्कुलेट किया था कि नंबर ऑफ क्लासेस एटलीस्ट 2 पर वीक रहेंगे. हाँ, तो Actually, I wanted to discuss that क्योंकि ईशान ने I think Friday चूज किया है
और आपने सैटरडे चूज किया है, हाँ, तो सैटरडे संडे। हाँ, तो मुझे ईशान से पूछना है या आपसे पूछना है, दोनों में से कोई क्या मतलब कोई एक डे पे हम कन्वर्ज कर सकते हैं क्या? क्योंकि मतलब संडे तो है ही है, वी हैव टू संडे तो है डिस्कस ही, अनदर। हाँ संडे तो है ही है, फ्राइडे और सैटरडे में हमें एक दिन पे कन्वर्ज करना है। तो फ्राइडे के दिन लेंगे तो मैम टाइमिंग क्या रहेंगी? इवनिंग होगा। फ्राइडे को अगर लेंगे तो इवनिंग होगा, सैटरडे को लेंगे तो मॉर्निंग होगा। ओके, हाँ चलता है। अगर फ्राइडे को इवनिंग में लेंगे तो आई विल बी रेडी। सैटरडे ओके के दिन तो मैं फ्री ही होता हूँ, आई कैन एडजस्ट दैट एज वेल। ओके, ईशान आर यू फाइन विद फ्राइडे? Yes, ma'am. I'm fine. Okay, so we will keep the classes on Friday and Sunday. It will also give you 1 day break as well, ना कि you can go through the material, जिससे कि संडे को अगर कुछ related चीज है तो at least you can go through it and understand and then come back to the class. वैसे सैटरडे वाली क्लास में भी हो सकता है क्योंकि पूरा दिन रहेगा, but still maybe it will be